Good morning, dear students. Today we are going to start the most important topic, maxima and minima, under the chapter applications of derivative. This topic is so important that every year at least one 6-mark question is being asked from this chapter. So, first of all, we shall focus upon what do we mean maximum or minimum values. What are the maximum and minimum values? Let f be a function in domain capital D, which is a subset of real numbers, then number one, f is said to have a maximum value in domain D if there exists at least one point C belongs to D such that f of C is greater than or equal to f of x for all x belongs to domain. See, f is said to have a maximum value in domain if there exists one point C belongs to capital D such that f of C is greater than equal to f of x for all x belongs to D. Okay? In the same fashion, the function is said to be f is said to have a minimum value in D if there exists one point, say small d belongs to capital D, such that f of D is less than equal to f of x for all x belongs to D. यहाँ ध्यान से देखेंगे कि डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू से कम है। यहां देख रहे हैं फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर वैल्यू के बराबर है या उससे कम है। दिस shows that function can have maximum and minimum values in the domain. इसको एक ग्राफिकली हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। Suppose the graph of a function in this way. This is the graph of y is equal to f of x. This is small a, small b. You can see here the tangent is parallel to x-axis. This is also the point where tangent is parallel to x-axis. This is one more point where tangent is parallel to x-axis. Means वहाँ पर derivative 0 होगा. F dash x will be 0 at that point. Now in this interval AB, function is defined. Say this point is x1. This point is x2 and this point is x3. At these 3 points x1. Now see,
the value of x is increasing, this x की वैल्यू बढ़ रही है, और वैसे वैसे आप देखिए फंक्शन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब fx की फंक्शन की वैल्यू है, y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इस केस में f dash x will be greater than 0 in this portion। यहाँ पर f dash x की वैल्यू 0 होगी, और आप यहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे y का मान घटना शुरू हो गया, तो यहाँ पर f dash x less than 0 होगा। Again you can see that f dash x is 0 here, here again f dash x will change its sign to positive, f dash x is equal to 0, and यहाँ f dash x is again less than 0. So we are leading to understand how the derivative changes sign and how the values of the function becomes maximum. You can see very carefully when derivative is changing its sign from positive to negative, मतलब अगर हम इस छोटे से नेबरहुड की बात करें तो डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो वहां पर आपको क्रेस्ट मिल रहा है, ग्राफ का क्रेस्ट मिलना यह साबित करता है कि वहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो। अब इस छोटे से नेबरहुड में आप देखेंगे तो डेरिवेटिव पहले नेगेटिव है, 0 हुआ, फिर पॉजिटिव, यहां पर आपको क्रेस्ट मिल रहा है। तो दिस getting crest means the value of the function is minimum, and again here you can see, अच्छा ये वाले पीक से ये वाला पीक ज्यादा ऊंचा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू वहां ज्यादा बड़ी होगी। सो इट मींस यहाँ दो जगह ऐसे स्थान पूरे इंटरवल में हमको मिले जहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, अधिकतम है, और एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहां फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। साथ ही साथ दो पॉइंट हमारे पास और हैं, एक पॉइंट है x इज इक्वल टू a और एक पॉइंट है x इज इक्वल टू b। यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यूज आप देखेंगे कि एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी मिनिमम या मैक्सिमम हो सकती है। तो किसी इंटरवल में ये जो पॉइंट्स हमको मिलते हैं x1, x2, x3, जिनके लिए f dash x का मान 0 होता है, these are called points of local maximum और minimum। क्या कहलाते हैं? Points of local maximum और minimum। और इन पॉइंट्स में फंक्शन की जो वैल्यूज होंगी they will be termed as local maximum or local minimum values of the function at those points. One more point here I would like to add, हमने एक सेट बनाया वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a, x1, x2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x, और y इक्वल टू f ऑफ x था जहां x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a b। ओके, अब इस सेट में जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी, मतलब वैल्यू एट एंड पॉइंट्स एंड वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, इसमें जो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी इस सेट की, वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है दो वैल्यूज है जो परीक्षा में आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है। अब ये देखेंगे कि हम किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमम या मिनिमम कैसे डिसाइड करेंगे, उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो ज्यादातर प्रश्न
मिनिमम में एप्लीकेशंस पे आते हैं और लेकिन उसका बेस तैयार करने के लिए लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने ग्राफिकली समझने का प्रयास किया। किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम होगा या लोकल मिनिमम होगा ये डिसाइड करने के लिए आप डेरिवेटिव में सपोज हम x बराबर 2 पर चेक करना चाहते हैं तो x इक्वल टू 1.9 पे एक वैल्यू निकालिए फंक्शन डेरिवेटिव की और x इक्वल टू 2.1 पे वैल्यू निकालिए। मतलब पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट में एक मान लेना है और राइट में एक मान लेना है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ इट मीन्स इट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो हम वहां डिक्लेयर करेंगे कि दैट पॉइंट विल बी ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के रिगार्डिंगली एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 28। This is the function and we have to determine the maximum and minimum values of the function if any। तो यहाँ से हम इस बात को ध्यान से देखें कि एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ये है 4x का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4x इंटू 2 4 का 8 2 जा 16। तो यहाँ इसका मतलब b स्क्वायर में हमें 4 मिलना चाहिए तो प्लस 24 अलग करना। तो ये हो गया 4x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 20। नाउ what can we conclude from this expression fx is equal to 4x minus 2 whole square। अब ये जो वैल्यू इस 4x माइनस 2 की वैल्यू जो है वो जीरो भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग यही लिखेंगे ना हियर 4x minus 2 whole square is always greater than or equal to 0 for all x belongs to real numbers। Okay, this implies अगर इसका मान 0 या 0 से बड़ा है तो f of x का मान हमेशा 24 से बड़ा 24 के बराबर या 24 से बड़ा होगा। Therefore what is the minimum value of f? f minimum is 24 और 24 से बड़ा कहाँ तक जाएगा we cannot define तो यहाँ लिख देंगे not defined या it will be infinite या बोलेंगे f minimum f has no max value। तो ये वो तरीका था जिसमें हमने किसी फंक्शन के नेचर को देख करके उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके कंप्लीट स्क्वायर बना करके ये डिसीजन ले लिया कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ना we would like to see the examples where we use the particular test। यहाँ पर ध्यान से समझें कि जो आपके सिलेबस में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो ज्योमेट्रिकली मोटिवेट करने का है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो प्रैक्टिकल यूज के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट let y equal to fx be a real valued function defined in domain या इंटरवल कैपिटल D। सबसे पहले differentiate with respect to x and solve f dash x is equal to 0
पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो एफ डैश एक्स को सॉल्व कर लीजिए। अगर वो क्वाड्रेटिक होगा तो 2 पॉइंट मिलेंगे, अगर क्यूबिक होगा तो 3 पॉइंट मिलेंगे, है ना। अभी हम लोग सपोज कर लेते हैं से x इज इक्वल टू x1 x2 और x3। नंबर 2, differentiate again with respect to x to get f double dash x. Number 3, if f double dash x x की जगह x1 रखिए is greater than 0 then x is equal to x1 is a point of local minimum. If f double dash x x1 x2 ले लेते हैं is less than 0 then x is equal to x2 is a point of local maximum. Number 5, if f double dash x3 is equal to 0 टेस्ट फेल्स। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर फेल हो जाता है और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होने के बाद वंस अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम रखेगा या लोकल मिनिमम रखेगा। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में ध्यान देंगे। एक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। Consider the function f(x) is equal to x cube minus 2x square minus 4x minus 1। इस फंक्शन के लिए हमें पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम या मिनिमम और लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी हमें फंक्शन की निकालना है। तो क्लियरली डोमेन ऑफ f is R, the set of all real numbers, because it is a polynomial function. We have f dash x is equal to 3x square minus 4x minus 4. F dash x is equal to 0 implies 3x square minus 4x minus 4 equal to 0. This implies 4 3 are 12, product is minus 12, so we will do it like minus 6x plus 2x minus 4 equal to 0, 3x common x minus 2 plus 2 common x minus 2 equal to 0 implies x minus 2 into 3x plus 2 is equal to 0 implies x is equal to 2 or minus 2। ये तो 2 पॉइंट निकले हैं, these are points of local maximum oblique minimum, but we are not sure at this junction कि ये मैक्सिमम का कौन सा होगा, मिनिमम का कौन सा होगा। वही डिसाइड करने के लिए हमने टेस्ट बनाए हैं। अभी मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से देखिए, f dash x बराबर क्या आया, x minus 2 into 3x plus 2। ओके, हम x बराबर 2 पर चेक करना है whether it is a point of local maximum or minimum। तो हम निकालेंगे f dash 1.9। यहाँ 1.9 रखूंगा तो पहला फैक्टर नेगेटिव मिलेगा, यहाँ 1.9 रखूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव है। f dash 2.1 तो ये वाला फैक्टर भी पॉजिटिव हो गया
और ये तो पॉजिटिव है ही, तो इक्वल मिलाकर के पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पहले f डैश x नेगेटिव था, 2 के बाद पॉजिटिव हुआ, मतलब ये वाली सिचुएशन ऐसी आएगी, यहाँ f डैश x लेस देन 0, यहाँ f डैश x बराबर 2 पे 0 हो जाएगा और यहाँ f डैश x पॉजिटिव हो जाएगा। क्या समझे बच्चों? हम समझ गए इस बात को कि डेरिवेटिव चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव as we move from the left of 2 to right of 2. Therefore, what will we say? X is equal to 2 is a point of local minimum. और local minimum वैल्यू जो फंक्शन की हमको निकालना होगा तो इसमें x की जगह 2 रख दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर आप समझ गए हैं तो इसका प्रयोग हम कभी भी कर सकते हैं। अब अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव आता तो लोकल मैक्सिमम डिक्लेयर करते और वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होता। हमें यहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीखना है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? f डबल डैश x निकालिए। f डबल डैश x क्या होगा? 3 2 6x माइनस 4, यानी अब देखिए f डबल डैश 2 निकालिए, ये जाएगा 12 माइनस 4 यानी 8 ग्रेटर देन 0 और इंप्लाइज x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड करेस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन में x की 2 रखिए तो हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9। f डबल डैश माइनस 2/3 निकालिए तो होगा 6 इंटू माइनस 2/3 माइनस 4 दैट इज 3 2 6 2 2 4 माइनस 4 माइनस 8 लेस देन 0। लेस देन 0 हमें शो करता है x इक्वल टू माइनस 2/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड करेस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी? फंक्शन x की जगह माइनस 2/3 रख दीजिए, माइनस 2/3 क्यूब इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2/3 माइनस 1 और इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लें। दिस वैल्यू कम्स एज 13/27 और दिस वैल्यू इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मे आई होप इट इज क्लियर। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये उसका प्रिलिमिनरी पार्ट है और इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स यू विल हैव टू डू एंड एप्लीकेशन नेचर टाइप प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप लोगों को यहाँ मालूम होना चाहिए। ए फंक्शन f of x has a point of inflection at x is equal to c if and only if f dash c equal to 0, f double dash c equal to 0 and f triple dash c is not। क्या होता है पॉइंट अपने बच्चों को बताया था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कि अगर हमने किसी पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू तो 0 आनी है, हमें वो लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन से निकाला है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट
एस की वैल्यू अगर 0 आ गई तो हम बोलते हैं टेस्ट फेल हो गया। अब वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाके चेक करें, या एक और ऑप्शन यहाँ इस थ्योरम से आपको मिल रहा है कि आप एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालिए। अगर एफ ट्रिपल डैश सी की वैल्यू 0 नहीं आती है लेकिन उसके पहले वाले दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, देन वी विल से दैट इट इज ए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। हिंदी में इसको स्तब्ध बिंदु कहते हैं। तो ये एक तरीका हुआ। यहाँ एक एप्लीकेशन नेचर का प्रॉब्लम हम लोग लेकर के देखेंगे कि कैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा का एप्लीकेशन यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। Example, find the largest possible area of a right angled triangle whose hypotenuse is 5 centimeter long। 2000 and 2006 कंपार्टमेंट में ये वाला प्रॉब्लम पूछा गया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली। हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल इज गिवन। हाइपोटेनस इज गिवन मींस सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये फिक्स है। अब 5 सेंटीमीटर हाइपोटेनस वाला जो भी ट्रायंगल होगा उसकी बाकी की दोनों साइड हमको नहीं पता है, तो हमने उसमें से एक साइड को सपोज x मान लिया और एक साइड को y मान लिया। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। Let ABC be the right triangle with angle B equal to 90 degree and hypotenuse AC is equal to 5 centimeter. Let AB equal to x centimeter and BC is equal to y centimeter. Let angle BAC is equal to theta, then cos theta will be equal to adjacent side upon hypotenuse and sin theta will be equal to opposite side upon hypotenuse. So this gives you x is equal to 5 cos theta and y is equal to 5 sin। इससे ये फायदा हुआ बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करके हमने यहाँ क्या किया, दोनों अननोन साइड को हमने एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर और उसमें हाइपोटेनस का इन्वॉल्वमेंट है। एक दूसरा तरीका मैं इसी सवाल का फिर आपको बताऊंगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, A is equal to half base into height, that is equal to half into 5 cos theta into 5 sin theta, that is equal to 25 by 2 sin theta cos theta। We can also convert this as 25 by 4 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको sin 2 theta। Differentiating with respect to theta we will get dA by d theta is equal to 25 by 4 sin theta का cos 2 theta और 2 theta का डिफरेंशिएशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25 by 4 cos 2 theta। dA by d theta equal to 0 तो अगर हम सॉल्व करेंगे
अगेन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए d2 a by d theta square we will calculate. So it will become 25 by 4 cos 2 theta का minus sin 2 theta into 2, that is minus 25 by 4 sin 2 theta d2a by d theta square at theta is equal to pi by 4. क्या होगा? sin pi by 2 1 होता है, तो वैल्यू आएगी minus 25 by 4 which is less than 0, implies area is maximum when theta equal to pi by 4, है ना? And hence x equal to क्या होगा? 5 cos theta, 5 cos pi by 4 यानी 5 by root 2, y is equal to also 5 by root 2 क्योंकि sin pi by 4 is again 1 by 2. So these are the two values of the sides for which area of the triangle will be maximum. तो a max की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a कितना था? 25 by 2 sin theta cos theta, तो 25 by 2 sin pi by 4 कितना होगा? 1 by root 2 into again 1 by root 2, that is 25 by 4 square units या स्क्वायर सेंटीमीटर. तो जो 5 सेंटीमीटर हाइपोटेनस का राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया होगा 25 by 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. बच्चों बहुत ध्यान से समझें कि इस प्रकार से सिस्टमेटिकली यानी हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको एक जो जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है उसको सिंगल वेरिएबल फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करना होगा. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. अब देखो मैं इसी सवाल को आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर हम ये थीटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं करते तो किस प्रकार से हमारी परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती थी. अब और प्रॉब्लम जो है वो डिफिकल्ट एल्जेब्रिक नेचर का हो जाता. लेकिन तब हम क्या लिखते हैं? इन राइट ट्राइंगल ABC x square plus y square equal to 25 by Pythagoras theorem. एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होता? हाफ x into y. अब यहाँ देखिए ध्यान से y की जगह आपको स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर यूज करना है, तब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होगा. अब चूंकि इसमें स्क्वायर रूट आ गया तो जो पहला डेरिवेटिव होगा उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा. स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट fx. तो दैट मेक्स द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. उससे भी अगर हमको थोड़ा सा बचना है तो हम लोग ऐसा मान लो लेट z इक्वल टू a स्क्वायर. ये हो जाएगा 1/4 x स्क्वायर 25 माइनस x स्क्वायर. सो इट इज 1/4 25 x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4. अब आप जब z की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो एरिया भी मैक्सिमम होगा. तो dz by dx निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा 50x माइनस 4x क्यूब. dz by dx को 0 के इक्वेट करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आएगी 50x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0, इंप्लाइज x कॉमन 50 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इक्वल टू 50 by 4 यानी 25 by 2. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 by 100. यही वैल्यू वहाँ पर भी आई थी. जब x का मान हम यहाँ 5 by root 2 है 25 by 4 रखेंगे तो उधर जाके 2 रखेंगे तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होके y की वैल्यू भी इतनी ही आई. x और y दोनों की वैल्यू 5 by root 2 आ गई. अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो d2z by dx स्क्वायर कितना होगा? 1/4 50 माइनस 12x स्क्वायर. x इक्वल टू 0 को हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ट्रायंगल की साइड 0 सेंटीमीटर की नहीं हो सकती. d2z by dx स्क्वायर
इक्वल टू 1/4, इसकी वैल्यू निकालेंगे x बराबर 5/√2 पे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 12 इंटू 25/2, 2 6 12, 20/6 150, कुल मिला के 50 माइनस 150 करेंगे तो लेस देन 0 आएगा, इंप्लाइज एरिया इज मैक्सिमम एंड x इज इक्वल टू 5/√2 इज इक्वल टू 1. That is it. I hope with this video lesson today you might be able to understand the basic concepts of maxima and minima. Dear students, actually the number of problems in maxima minima is very large, so in today's video I can complete only the beginning basic portions. One more video lesson will be required to solve multiple type of problems. In future we will, as soon as we will find time, we will take one more class of maxima and minima. You can at least initiate your NCERT textbook with the help of this video lesson. Thank you.